कनेक्टिंग फ़्लाइट मेरे सिटी से, जो कि मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट ली और वहाँ से मैं आया हूँ दिल्ली, और दिल्ली से मैं जा रहा हूँ यूक्रेन, जो कि उसका कैपिटल है कीव, और मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस। सो लेट्स सी, पहले चेक इन करते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है, और बताते हैं आपको आगे। सो अभी इमिग्रेशन तो ईज़िली क्लियर हो गया है, बट उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे इमिग्रेशन में। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, मैंने बोला कि कीव। उन्होंने बोला कि आप कीव जा रहे हो, वो कौन से कंट्री में है। अब मैंने बोला डेफिनेटली इट्स इन यूक्रेन। फिर उन्होंने मेरा ई वीज़ा मांगा, मेरा रिटर्न टिकट मांगा, और पूछा कि किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हो। मैंने बोला कि ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उनका क्वेश्चन था कि यहाँ तो मोस्टली सब स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप ट्रैवलिंग के लिए। मैंने बोला कि हाँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, और मैंने कुछ थोड़े बहुत से कंट्री मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। सो उन्होंने वो भी कंट्रीज़ के लिस्ट देखे कि मैं कहाँ कहाँ पे जा चुका हूँ, और फिर बस डन हो गया अपना इमिग्रेशन, और अभी मैं आके बैठा हूँ लॉन्च में। सो हियर इज़ द लॉन्च। ये जो था, मैं वो इंडियन इमिग्रेशन की बात कर रहा था, ना कि यूक्रेन का इमिग्रेशन की, क्योंकि अभी मैं इंडिया में ही हूँ, और ये जो मुझे क्वेश्चन किए गए थे वो इंडिया के इमिग्रेशन पे किए गए थे। सो अभी जस्ट फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम है, वहाँ पहुँच के देखते हैं कि अपना यूक्रेन का इमिग्रेशन कैसा रहता है। For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. So that girl symbolizes independent Ukraine. Yeah, you see she's beautiful. She's holding the branch of Gilder Rose. And it is one of the symbols of our country. And actually, yeah, so this is independent Ukraine. This fountain is called to the founders of Kyiv. So, yeah, Kyiv founders. Yeah, 3 brothers and sisters. So this is southern city gate with Archangel Michael on the top. Like not very typical thing, you know. Look, this is a secret place. It is the restaurant which is dedicated to 3 Ukrainian revolutions. It is called the Lost Barricade. Very good one. Good prices and very good food. And in order to get inside, you need to know the password. Okay. If you don't know the password, they will say goodbye. Okay. Sorry, you cannot go. And actually, if you want to go, so you need to go in the underground passage and find these 2 letters. So these letters are in Cyrillic alphabet. Yeah, you see OB. It is Ostanya Barakada, like the abbreviation of the words. Yeah. So you go there, and in the passage you find these letters. You can go, and there you say "Борітеся, поборете." This is the password. What does it say? Борітеся, поборете. Борітеся, поборете. Yeah, exactly. So you have very good actual pronunciation. Yeah, I'm good at it. Yeah. It means fight and you'll win. Fighting Halloween. Yeah, fight and you will win. Yeah? Fight and you will win. Okay. Yeah. Actually, you can also say it in English, but usually, like if you say it in Ukrainian, they will be super excited, and you will have like even better, you know, service and so on. And after that, you can get inside. I do recommend. Yeah, definitely a nice place. Борітеся, поборете. Борітеся, поборете. Excellent. And this one is called Saint Michael. And Saint Michael, it is named after that Batman guy. Yeah, so I told you that he's quite important one. Let's first couple of words about these guys. They were also important for our history. So first about that one. So his name was Andrew, and he was the 2nd patron of the city also. He was actually Apostle Andrew. And everything here in Kyiv and in Ukraine will be connected with Christianity. But as you understand, young people really like making jokes. And that is why we say that it looks like he's trying to catch taxi. Like, taxi please. Yeah. That is why he is called Taxi Catcher Man. Yeah. So this is Taxi Catcher Man.
in history of Kyiv. Her name was Queen Olga. She was super smart lady. She was ruling in the 9th century, and she was also important because she was the one who brought Christianity. So she wasn't actually, before her, all the people used to be pagans and they believed in different gods. But she understood that Christianity was very important for the development of the country, like internationally, you know? Yeah. And that is why she really wanted to work together with Constantinople, Byzantine. So she went there, it's like modern Turkey, yeah? She went there and he said to their emperor, like, I want to be baptized. It will be my sign, you know, that I am ready, like, to be partners with you. And he said, yeah, okay. But he actually really liked her. She was a beautiful lady. And he asked her about marriage. But she said, you know, maybe like we will do the ceremony first. I want to take Christianity. I will want to be baptized. And it would be great honor for me to, if you become my grandfather. So she asked the Byzantine emperor to become her godfather. He agreed. And after the ceremony, he asked about marriage again. And she said, like, you're my godfather. You can't be my husband at the same time. You know, that's not okay. That's not right. So yeah, she was like smart, witty, and she was beautiful. She wasn't the one who brought Christianity to all the people. She was just the first leader who did that. And then only her grandson, Volodymyr the Great, brought Christianity in 988. And actually behind this church, St. Michael's, there is St. Volodymyr's park. And if you go there, you will see St. Volodymyr's monument, the guy holding the Christ. So he christened all the people like in the huge river, Dnipro. That was a really big thing. But like she was, you know, the first who realized the importance of it. And about those two guys, you know, lots of tourists, I think including you. They look, they are brothers or like that? Because they look same. They're brothers? Brothers, yeah, exactly. They are brothers. Lots of tourists, including you, don't like them. Do you have any ideas why? I mean, are you asking about the origin or no. they did? Like they did something, yeah. So I would say they invented something that makes your life here in Kyiv and in Ukraine more complicated. I can only imagine about study. If I don't want. Yeah, so let's think, like, look, they are having books, they are reading something, yeah. So I would say that their names were Saint Cyril and Methodius. And Cyril, so it means that they created Cyrillic alphabet. Yeah. So can you read some is- Cyrillic alphabet? No. It's pretty difficult, it's pretty different. So finally guys, मैं पहुंच गया हूँ क्यू में. सो अभी आप लोग मेन तो जानना चाहोगे कि आपने इमिग्रेशन कैसे क्लियर किया. तो मैं एक्चुअली जो आया था वो था यूक्रेन की एक इंटरनेशनल कैरियर के थ्रू, जो कि है यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसको बोलते हैं UIA. तो उसमें एक्चुअली होते हैं 360 पैसेंजर. सो क्या हुआ कि एज ऑफ नाउ अगर कोई भी बंदा इंडिया से आता है या कोई भी आदमी पिछले 14 दिनों में इंडिया में रहा हुआ है और वो यूक्रेन में एंटर होता है, तो उनको यूक्रेन में एंटर होते ही पहले RT-PCR टेस्ट कराना होता है, जिसकी कॉस्ट एयरपोर्ट पे है $45. So keep in mind that you have $45 change in your hand और you have internet access in your mobile. So obviously internet access आपके मोबाइल में नहीं होगा. So आप $US कैरी कीजिए और वो भी बने तो चेंज लेके आइए, बिकॉज इन लोगों के पास चेंज नहीं होगा. So it may be trouble having pass your PCR test. सो एज सुन एज कि आपका PCR टेस्ट पास हो जाए, जो कि जिसमें लगता है 20 मिनट जैसा, उसके बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन के लिए. जैसे ही आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे होंगे तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन ऑफिसर बीच में मिल जाएगा. एक्चुअली वो इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं है, वो है पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर. तो पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर आप सब लोगों के पासपोर्ट ले लेगा. सो हमारी जो फ्लाइट थी वो सभी बंदों के पासपोर्ट वो पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर ने ले लिए और उनके पास रख लिया, और उन्होंने सब लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ पे वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करते हैं या बुलाते हैं. ठीक है. सो जैसे आधा घंटा हुआ तो उन्होंने 1-2 लोगों को बारी बारी से बुलाना शुरू कर दिया. ठीक है. एक्चुअली अंदर क्या क्वेश्चन हो रहा था वो पता ही नहीं चला किसी को, क्योंकि उन्होंने जस्ट अंदर बुलाया, पूछा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करना चाहते हो, और जस्ट उनको वापस भेज दिया. बिकॉज 360 पैसेंजर्स का इंटरव्यू लेना, मतलब कि उनसे क्वेश्चन करना, इट इज़ अ वेरी बिग डील, और इतने में पता नहीं कितना समय लगेगा.
सो आधे पौने घंटे के बाद उन लोगों को रियलाइज़ हो गया कि ऐसे तो हमारा काम ख़त्म होने वाला नहीं है। सो क्या किया एक्चुअली, बट या देर इज़ वन प्रॉब्लम विथ आवर फ्लाइट। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो ग्रुप था वो था 83 पीपल का, मतलब कि 83 पीपल एक साथ में ट्रैवलिंग कर रहे थे, जो कि एक पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू आए थे। सो एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने एक बंदे को बुलाया वो ग्रुप में से और पूछा कि आप हमें होटल का कॉन्टेक्ट दीजिए और आप हमें जो आपका जो ट्रैवल एजेंसी है उनका नंबर दीजिए। होटल का तो नंबर लग गया, पर जो ट्रैवल एजेंसी था उनका नंबर उनसे उन लोगों की बात नहीं हो पाई। सो एक्चुअली में उन लोगों का प्रोसेस वहीं पे रुक गया और 83 पैसेंजर्स का प्रोसेस वहाँ पे रुक गया। तो उन लोगों को थोड़ा मतलब कि अनईजी लगा कि मतलब ये क्या है कि 83 पैसेंजर्स को हम हैंडल कैसे करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो किया वो एक्चुअली मैंने भी ऐसा कोई वीडियो में मतलब पहले देखा नहीं है या फिर सुना नहीं है। एक्चुअली क्या कि उन्होंने वर्बली जस्ट सब लोगों से कांटेक्ट कर रहे थे कि आप हमें अपना वीज़ा दिखाइए, आपका पर्पस दिखाइए, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी और आप कौन सी होटल में रुके हुए हैं, बस दैट इज़ द ओनली थिंग दैट दे आर आस्किंग दिस टाइम। ये जो एक्चुअली मेरे साथ जो सिनेरियो जो मैंने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है, बहुत सारे वीडियो में, कि मतलब कि पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर आएगा, आपको एक अलग रूम में ले जाएगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, वो एक्चुअली मेरे केस में हुआ ही नहीं। मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ जो भी बंदे थे फ्लाइट में उनके साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज एक्चुअली उन लोगों के पास ना स्टाफ बहुत कम था और यहाँ पे इतने सारे पैसेंजर्स थे। और जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड हुई तब तो दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था फ्लाइट पे। उसके बाद दूसरी 3-4 फ्लाइट एक साथ ही लैंड हो गई, बट जो कि इंडिया से नहीं थी, दूसरे कंट्री से थी, बट स्टिल दे हैव टू हैंडल दैट ऑल पैसेंजर्स। तो आफ्टर 2 hours they just thought that let we clear it, if anyone having the every document then just let them go. So yeah, ये था मेरे केस में सिनेरियो। बट मेन चीज़ वही है कि अगर आप इंडिया से आते हो तो आप $45 खुले लेके आइए, जो कि आपको RT-PCR के लिए लगेंगे, और उसके पास आपके पास सभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और सबकी हार्ड कॉपी हैंड में होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट मोबाइल में नहीं चलेगा, आपको हार्ड कॉपी दिखानी पड़ेगी उन लोगों को, ठीक है। और इसके बाद जो मुझे सबसे ईजी प्रोसेस लगा एक्चुअली कि मैं एक्चुअली एक ट्रैवल वाउचर लेके आया था। ट्रैवल वाउचर मतलब कि मैंने एक ट्रैवल वाउचर बनाया था यहाँ की एक टूर ऑर्गेनाइज़र कंपनी से। वो उन्होंने सब मेंशन किया हुआ था कि मेरा टूर प्रोग्राम कितने दिन का है, मतलब कि मेरा वीज़ा जिस डेट से जहाँ तक का वैलिड है वहाँ तक का मैंने टूर प्रोग्राम किया था। मेरे पास रिटर्न फ्लाइट थी और मैंने इंश्योरेंस भी लिया हुआ था, और मेरे पास वो था टूरिस्ट वाउचर। सो अगर वो लोग टूरिस्ट वाउचर देखते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि टूरिस्ट वाउचर में ना आपकी ट्रैवल एजेंसी का नंबर दिया होता है, तो उन लोगों को वही कंफर्म करना होता है कि मतलब ये जो बंदा आ रहा है वो ऑफिशियली ही आ रहा है ना, मतलब कि यहाँ से कोई डोंकी मार के तो नहीं चला जाएगा। डोंकी मतलब कि आप यूक्रेन में एंटर होते हो और फिर यहाँ से भले ही आपके पास रिटर्न टिकट है, बट आप यहाँ से कहीं दूसरे कंट्री में तो नहीं चले जाओगे ना। सो उन लोगों को वही डर होता है, इसलिए यूक्रेन इमिग्रेशन इंडियंस के लिए बहुत टफ माना जाता है, बिकॉज मोस्टली इंडियंस क्या करते हैं मतलब कि डोंकी मारते हैं। बट मेरे ख्याल से ऐसा मत करो यार, क्योंकि इसकी वजह से ना इंडियंस की बहुत गलत इंप्रेशन पड़ती है यूक्रेनियंस के दिमाग में। सो दे आर टेकिंग इंडियंस वेरी कॉशियसली। सो यही है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और अगर आपको टूरिस्ट वाउचर बनवाना है, जो कि मैंने बनवाया था, वो एक्चुअली में बनाया था $35 में, $35 में आपको टूरिस्ट वाउचर बन जाएगा। और वो लोग आपको ईमेल भी कर देंगे, आप उसकी कलर जेरोक्स भी करा सकते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट, बट कलर जेरोक्स मेरे ख्याल से बेटर रहेगी दिखाने के लिए। और उसमें ट्रैवल एजेंसी का नंबर भी होगा। अगर वो लोग उनको फ़ोन कर दे तो वो लोग बोलेंगे कि मतलब ये टूरिस्ट को हम हैंडल करने वाले हैं और ये जगह है वो हम उसको दिखाने वाले हैं। फिर भले ही आप वहाँ जाके कुछ और करो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप यूक्रेन में एंटर हो जाते हो, देन टूरिस्ट वाउचर का कोई मतलब नहीं रहता, बस बट वो जस्ट आपके इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए रहता है। सो यही था जो भी था इमिग्रेशन का मामला। मिलती है आपको अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा।